Good morning, dear students. Welcome in online classes. Dear students, today our topic is independence and partition of India. Before that, we already discussed about that Subhash Chandra Bose, Indian National Army and Forward Bloc. The topic is today our topic is independence and partition of India. In this chapter, we already discussed about that how the British Raj transfer the power from British to Indian leadership and how the Muslim League and Congress accepted the Mountbatten Plan. Let us see in this chapter. If you see about that, there are two important changes in the world level. Before the discussion of the chapter, I would like to introduce about that there are two major changes in the world level. First of all, the Second World War came to be an end. The Second World War, those are started from 1939 and continue going on from 1939 to 1944. After 1944, in 1945, the United Nations organization also established. And second important changes into the British in the government, the Prime Minister of the Britain government replaced by the Labour Party, Lord Attlee now become the Prime Minister of Britain. Lord Attlee never want to continuation of the British rule on India, so Lord Attlee sent the cabinet mission proposal in India to solve the communal rule between the Congress and the Muslim League. So let us see the book. Please, all of you open the book and see the chapter Cabinet Mission. What was Cabinet Mission? Actually, Cabinet Mission is a proposal. The Labour Party came to power. As we know, Labour Party came to power in England with Attlee as the Prime Minister. इस समय लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बन चुकी थी 1945 जुलाई में और उसके प्राइम मिनिस्टर एटली बन चुके थे. ही वॉज अपोज टू द कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, और वो कभी नहीं चाहते थे कि अब ब्रिटिश रूल कंटिन्यू भारत में कंटिन्यू चलाया जाए. देयरफॉर एटली सेंट द कैबिनेट मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ टू इंडिया ऑन मार्च 24, 1946. इसीलिए लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन प्रपोजल भेजा. इसमें 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे. ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है. इन 1946, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड फाइनलाइज प्लान बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फॉर द ट्रांसफर ऑफ power from the British Raj to the Indian leadership. Yes, so dear students, in this lecture we already discussed about that how the Lord Attlee sent the proposal between the Congress and the Muslim League and what was the result after the proposal. First of all, I would like to introduce about the name of the person, those who are the member of the cabinet mission plan. First member, Lord Stafford Cripps, the president of the Board of Trade. A.B. Alexander, first Lord of Admiralty, and after holding the talks or negotiation with the main political parties of India. Okay, so Stafford Cripps, Lord Lawrence and A.B. Alexander. Many times the question is asked into the board examination. Write the name of the member of the cabinet mission proposal. So first member, Lord Stafford Cripps, Lord Lawrence, A.B. Alexander. They all were the important member of the cabinet mission proposal. Okay, cabinet mission come to India on 24 March and start the negotiation between the political parties of India. The cabinet prepared a plan which is called the cabinet mission proposal or cabinet mission plan. Dear students, कैबिनेट मिशन प्रपोजल एंड कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, इसमें एक एक करके हम देखेंगे. सो फर्स्ट प्लान अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्रपोजल, फेडरल गवर्नमेंट इट रिकमेंडेड अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर द होल इंडिया, मीन्स state government and the central government. The federal government means divided into 2 type of the government. Central government was to only 3 subject under its jurisdiction, namely defense, foreign affairs and communication. ये किसको दिया जाएगा? सेंट्रल के पास रहेगा. एंड ऑल्सो हैव द पावर टू रेज फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर दीज सब्जेक्ट. मतलब प्रोविजन का जो सबसे पहला प्रोविजन था कैबिनेट मिशन प्लान का, उसमें क्या था कि आफ्टर ट्रांसफरिंग द पावर हम क्या करेंगे, इंडिया को फेडरल टाइप ऑफ द गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें एक सेंट्रल लेवल पर होगा और एक स्टेट लेवल पर होगा. इसके अलावा इस प्रपोजल में एक और चीज कहा गया था. सी द बुक. The rest of the subject would be under the control of provinces and princely state which would enjoy full autonomy. Okay, rest subject किसके पास रहेगा? जो
बाकी बचे प्रोविंसियस होंगे और जो प्रिंसिली स्टेट होंगे, जो राजाओं के अंडर में स्टेट हैं, उनको नेक्स्ट सब्जेक्ट दिया जाएगा एंड दे वुड बी इंजॉय फुल ऑटोनॉमी, जिसके ऊपर उनका पूरा अधिकार और पूरा पावर होगा। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसियस, द ब्रिटिश प्रोविंसियस वुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ईच ग्रुप कुड डिटरमाइन द provincial subjects to be taken in common. A provinces could opt out of any group and join another by a majority of votes. Yes, grouping of provinces means नेक्स्ट जो ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगे उनको इन्होंने ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप में डिवाइड किया। मीन्स ए ग्रुप में किसको रखा? मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, द सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा। ग्रुप बी में किसको रखा? पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ब्रिटिश बलूचिस्तान। एंड ग्रुप सी में केवल 2 प्रोविंसेस को ग्रुपिंग किया गया, जिसमें बंगाल एंड आसाम था। सो डियर स्टूडेंट्स, if you watch the proposal and if you see the first point, the cabinet mission recommended a federal structure type of the government established in India after the transferring of power. First point. Second, he also give the full autonomy to the princely state and the provinces. And third, the British provinces divided into 3 groups: Group A, Group B, and Group C. This is the first point according to recommendation of the cabinet mission proposal. After that, a constituent assembly also established. According to this proposal, cabinet mission plan again recommended that after the transferring the power, we will be finalize a constituent assembly. A constituent assembly consisting of 389 members. इसमें कितने मेंबर होंगे? 389 and 292 members from provinces, जो कहाँ से आएंगे? प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आएंगे। 4 from the territories governed by a chief commissioner, जो किसके द्वारा गवर्न किए जा रहे थे? चीफ कमिश्नर के द्वारा। एंड 93 फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट वुड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इस प्रपोजल का जो सेकंड पॉइंट था उसमें यह था कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर 389 रहेंगे, जिसमें 292 मेंबर्स प्रोविंसेस से आएंगे जो इलेक्ट होकर आएंगे। 4 कहाँ से आएंगे? जो टेरिटरीज जो गवर्न होती थी चीफ कमिश्नर के अंडर में, वहाँ से आएंगे। और 93 कहाँ से आएंगे? प्रिंसिली स्टेट से आएंगे। और इन सभी को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद इसको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। अलग अलग ग्रुप अपने अपने सेक्शन के व्यूज आइडियाज़ को लाकर लिखेंगे और सारे ग्रुप के आइडियाज़ और ग्रुप को कॉमन जो होगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली रिटर्न करेंगे। फॉर द प्रोविंसेस इंक्लूडेड इन द ग्रुप, फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड मीट अगेन ज्वाइंटली एंड फ्रेम द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, अगर आपको पूरा नहीं क्लियर हो रहा तो इतना जरूर याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द cabinet mission plan, they also recommended to make a constituent assembly. And what was the constituent assembly? What was the work of the constituent assembly? The work of the constituent assembly to frame the work of constitution of India. Means the main aim of the constituent assembly to frame the constitution of India. Okay. After that, a formation of interim government. It is also recommended by the cabinet mission plan. An interim government at the center consisting of representative of all communities would be installed on the basis of party between the representative of Hindu and Muslim. Formation of interim government means एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जब तक कि पावर ट्रांसफर नहीं होगा। और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट या अंतरिम गवर्नमेंट सभी कम्युनिटीज़ के लोगों को शामिल किया जाएगा। सभी कम्युनिटीज़ के लोग इसके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे और रिप्रेजेंटेटिव हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी जो होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे जब तक कि हम पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम गवर्नमेंट, इट इज आल्सो रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन प्रपोजल। आफ्टर दैट टेरिटरी, इट वुड बी नेसेसरी टू वर्क आउट अ टेरिटरी बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड फॉर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, जब पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर होकर और अपने काम को करना शुरू करेगी तो उस समय एक समझौता होगा, एक टेरिटरी होगा यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कि हम अपने पावर को कैसे ट्रांसफर करेंगे। मीन्स इट इज आल्सो रिकमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट, इट इज आल्सो रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। मीन्स कि एक समझौता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी तरह से बन जाने के बाद। आफ्टर दैट, फ्रीडम टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ। यस, द यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी फ्री टू रिमेन इन or walk out of the British Commonwealth. The plan was
टू बी टोटली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एक ये भी पॉइंट इसमें जोड़ा गया था कि जो कॉमनवेल्थ से संबंध रखना चाहता है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जो इंडियन यूनियन के स्टेट्स संबंध रखना चाहते हैं वो कंटिन्यू फ्यूचर में संबंध रख सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं इस संबंध को रखना तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब टू फ्रीडम टू ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, इट इज कीवर्ड्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज टू बी गिवन टू द मुस्लिम एंड सिख, खास करके मुसलमानों और सिख को एक अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनेंगे तो उनके लिए सीट जो होगी वो रिजर्व होगी। ओके, फाइनली in July 1946, Jinnah rejected the British plan for transfer of power to an interim government which would combine both the Muslim and the Indian National Congress. जिन्ना ने 1946 में फाइनली इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि दोनों के सहयोग से जो अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की बात हो रही है उस पर मैं सहमत नहीं हूँ। He said that if the Muslim were not granted a separate state Pakistan, then he would launch direct action day the Muslim League withdraw its acceptance of the cabinet mission plan. जिन्ना की जिद थी कि मुझे इस प्लान में जब तक पावर ट्रांसफ़र करने की जो बात हो रही है अंतरिम गवर्नमेंट उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ सेपरेट नेशंस का दर्जा हमको पाकिस्तान का एक अलग सेपरेट नेशंस नहीं इसमें कुछ किया गया है, ना ही उसकी बात की गई है, तो इसको मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। मतलब और उन्होंने एक धमकी भी दिया कि नाउ वी वांट टू इस्टेब्लिश एंड launch the direct action day. Finally, the Viceroy resumed negotiation with Nehru and Jinnah for the formation of interim government. Viceroy ने नेहरू और जिन्ना को काफ़ी हद तक अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए कहा। द मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन इट, मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज कर दिया अंतरिम गवर्नमेंट में शामिल होने से। द वायसराय डिड नॉट अलाउ जिन्ना टू वीटो हिज प्रपोजल, और इसके लिए वायसराय ने जिन्ना को अपने वीटो को अलाउ ना करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली ऑन अगस्त 14, 1946 द वायसराय इन्वाइटेड जवाहरलाल नेहरू टू फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, अंतरिम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू को मिस्टर वायसराय जो भी थे उन्होंने मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया। ऑन द नेक्स्ट डे जिन्ना अनाउंस अगस्त 16, 1946 वुड बी डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने अगले ही दिन सुबह 16 अगस्त 1946 को जैसे ही ये गवर्नमेंट अंतरिम गवर्नमेंट बनी, जिन्ना ने पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे को स्टार्ट किया। व्हाट वाज डायरेक्ट एक्शन डे? व्हाई मिस्टर जिन्ना लॉन्च द डायरेक्ट एक्शन डे? व्हाट वाज हैपन इनटू द डायरेक्ट एक्शन डे? Tomorrow we again discuss about into the next video. Thank you.